Hello everyone, welcome back to our another episode on Beyond the Ranks. So today we have a very special guest on our podcast, Anishka Agarwal from Mumbai. So hi Anishka, how are you doing? I'm good. How are you doing? Yeah, same here. So let me set the agenda behind our podcast. So today we'll be touching upon a very interesting topic of a discussion जो कि सोसाइटी में लोग उसे थोड़ा सा कॉर्नर कर देते हैं, लेकिन आज की डेट में लोग उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे। पहले ऐसा होता था कि मेंटल हेल्थ को लोग साइड कॉर्नर कर देते थे। सो आज हम अनिष्का से उनकी जर्नी समझेंगे। लाइक शी इज़ अ थेरेपिस्ट as of now, and she has done her education, her masters, and currently pursuing her psychology. Okay, so without wasting much of our time, we would like to know from our guest ki she should tell our audience about her academic background and about her current role, what she is doing in her career. Okay. All right. Anyway, thanks for having me here, and hi everybody. So I'll just give you an overview of what my career looks like because it is not as conventional as any other field. So it starts off with a humanities coursework which starts in school itself. ज़रूरी नहीं है, कुछ साइंस से भी आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं. अभी थोड़े से स्ट्रक्चर होते जा रहे हैं considering the governing bodies that we have. बट जनरली इट्स गोज ऑन टू बैचलर्स डिग्री. उसके बाद मास्टर्स की डिग्री होती है. मास्टर्स डिग्री इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन नीडेड टू बी अ थेरेपिस्ट और अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. Okay. बैचलर्स डिग्री इज यूजली अ बी ए और अ बी एस सी. या तो वो प्रॉपर साइकोलॉजी में होती है या जनरली बी ए बी ऑनर्स होते हैं. और उसके बाद मास्टर्स होती है, वो थोड़ा स्पेशलाइजेशन पर फोकस्ड रहती है. सो डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपका स्पेशलाइज होता है साइकोलॉजी में, वो होता है मास्टर्स में. एंड देयरफॉर यू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट while you continue learning, unlearning, and pursuing other degrees along with it. Okay. Anushka, मेरा यहाँ पर follow up question है कि like when you were in your 12th, like you had humanities, right? जी So हाँ. उस time पर ही like just like throughout your through your schooling 11 12th में ही हाँ. आपने decide हाँ. कर हाँ. लिया था कि you will be going towards the psychology side, या फिर जी. graduation कर मतलब schooling करने के बाद किसी मतलब parents ने बोला या किसी senior ने mentor ने guide किया? Like I wanted to understand like what motivated you to pursue a career in such a unconventional domain. देखिए, मैंने 10th क्लास में ही डिसाइड कर लिया था दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. एंड इट केम अप फ्रॉम अ वेरी हार्ड टाइम इन माय लाइफ. Okay. And I had witnessed the gap because I was subjected to bad treatment when it comes to mental health, and that led to certain consequences in my life that weren't working for me. And I thought कि I want to bridge this gap. Okay. एंड बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके बाद कि ये क्यों करना है. उसके बाद मोटिवेशन कर मिलने के लिए बहुत सारे रीजन खुद भी ढूंढने पड़ते हैं. So I think from a very early age, I had known that this is the as a umbrella career I want to pursue. But to be a therapist, that came along with time. That interest developed with time. Okay, great. So, like can you tell our audience about from which college you pursued your graduation, post graduation, and about your Yeah. PhD that you are currently pursuing? हाँ, तो आई स्टार्टेड ऑफ विद माई बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी मुंबई. उसके बाद ही आई परस्यूड माई मास्टर्स फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी. और अभी मैं पीएचडी परस्यू करना अभी स्टार्ट ही किया है फ्रॉम Okay, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर. ऑल्दो मैं पार्ट टाइम पीएचडी कर रही हूँ, सो आई डोंट नीड टू बी देयर अकेडमिकली थ्रू आउट द ईयर. इट इज़ यूजली द कोर्स वर्क एंड थोड़ा बहुत जॉब अप्रूवल्स वगैरह होते हैं. दैट्स अबाउट इट. okay, great. So अनुष्का, जैसा आपने बताया कि साइकोलॉजी में करियर परस्यू करने के लिए यू नीड नॉट टू बी कम फ्रॉम अ ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड. सो लाइक एनी स्टूडेंट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, साइंस, सब मतलब ए टू जेड आपके बैचमेट में आपके बैच में सभी डोमेन्स के सभी अलग अलग ब्रांचेस जी. के लोग थे? देखिए, जब मेरे मेरे टाइम पे हो रहा था तब हमारी जो गवर्निंग बॉडी है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिंजेंट नहीं थे कि आपको ह्यूमैनिटीज़ से ही आना है या आर्ट्स या इससे ही आना है. ऑल्दो कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड गिव्स यू सर्टेन एडवांटेज क्योंकि आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ होता है. ओके. अगर आप कॉमर्स से आ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको बैचलर्स में फिर पढ़नी पड़ती है जो शायद बाकी लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं. थोड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज उधर होता है, विच इज़ वाई the governing body has, which is RCI, has issued certain statements which keeps thoda sa changing here and there. But for now, it is trying to limit it to science background too.
ओके। But हाँ अभी because these guidelines are not as strictly adhered to, हम्म। we do not know for sure. ओके, cool. So Anushka, if I talk about the skill sets required, let's say we can touch upon, like we can bifurcate this question in two parts. Like जी. आपने अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में क्या सीखा, लाइक क्या पढ़ाया जाता है अगर मैं इंडियन करिकुलम की बात करूं, बिकॉज आई बिलीव मोर और लेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में हम्म. करिकुलम सिमिलर ही रहता है. सो हम्म. करिकुलम वाइज साइकोलॉजी में क्या क्या किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, और जो रियल लाइफ सिनेरियोज हैं हम्म. उनमें डू यू फील इज देयर एनी गैप कि जो पढ़ाया जाता है और जो आप रियल लाइफ सिनेरियो सिचुएशंस फेस करते हो, और इंडस्ट्री में इस चीज की, इस डोमेन की कैसी डिमांड है? आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट. देखिए आई कैन ओनली टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी दैट आई कम फ्रॉम, ओके. और जो भी मेरे सेकेंड हैंड एक्सपीरियंसेस रहे हैं दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के साथ, मतलब हर्ड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पीपल, देर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन वॉट इज़ टॉट एंड वॉट इज़ प्रैक्टिस्ड. बहुत सारी चीज़ें हैं जो थेरेपिस्ट्स को नहीं सिखाई जाती और उन्हें खुद सीखनी पड़ती है थ्रू द टाइम. बैचलर्स में काफ़ी हद तक फोकस थ्योरी पर रहता है कि ये थ्योरी इसको ऐसे कंसेप्शलाइज करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, विच इज़ फेयर इनफ क्योंकि तब वी कांट रियली परसू बीइंग अ थेरेपिस्ट एज सच. मास्टर्स में रोल प्लेज आते हैं, केस स्टडीज़ होती है, मूवीज़ होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से कोशिश की जाती है कि थ्योरी को प्रैक्टिस में इंटीग्रेट किया जाए. बट तो भी एक बड़ा सा गैप रह जाता है. बहुत सारी छोटी चीज़ें जो बहुत इंटीग्रल पार्ट बन जाती है थेरेपिस्ट की लाइफ का, वो नहीं सिखाई जाती. ऑफ कोर्स स्किल सेट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यू हैव टू बी मोर माइंडफुल, मोर एम्पैथेटिक, मोर कंपैशनेट. ये सारी चीज़ें करने की बहुत कोशिश की जाती है. बट छोटी छोटी चीज़ें जैसे थ्योरीज हैं वो बहुत वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से आती है. ईस्टर्न पर्सपेक्टिव पे एटलीस्ट मेरे कॉलेज में इतना फोकस नहीं हुआ करता था, और बहुत ओके. सारे कॉलेजेस पे नहीं है. वेस्टर्न थ्योरीज वगैरह सिखाई जाती है. कमिंग ओके. फ्रॉम द इंडियन बैकग्राउंड बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस इज कॉलेज में यूजली जो कॉन्वर्जेशंस होती है रोल प्लेस में भी वो इंग्लिश में होती है. हम्म. बट इंडिया की काफ़ी हद तक पॉपुलेशन हिंदी स्पीकर्स है. तो अब हम्म. हिंदी में थेरेपी सेशन कैसे लेना है वो भी सिखाना बहुत इंटीग्रल होता है, क्योंकि अगर वहाँ थेरेपिस्ट ही बैठ के अपने वर्ड्स को क्वेश्चन करता रहेगा कि क्या बोलना है आगे, तो फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता. तो ऐसे बहुत सारे गैप्स हैं. ये बस एक लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी मोस्ट सिग्निफिकेंट गैप दैट आई सी. बट ऐसे बहुत सारे गैप्स हैं जो कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं लेकिन प्रैक्टिस में बहुत बड़े मार्जिन से गैप रह जाता है उस चीज़ को लेकर. ओके. सो अनुष्का, मैं अगर आपके अभी जो आपका करंट रोल है, लाइक यू आर वर्किंग एज अ थेरेपिस्ट एज वेल, जी. सो हाँ. आपको अपनी जॉब का टेल आवर व्यूअर्स वन थिंग दैट यू लव द मोस्ट अबाउट योर जॉब एंड वन थिंग दैट यू, आई कैन से, हेट अबाउट योर जॉब. कुछ अगर ऐसा पार्ट आपकी जॉब का दैट यू वुड लाइक टू शेयर. And देखो, there are too many things that I do love about my job. One of the things is that it offers flexibility to me in terms of how I want to work, what I want to work, and how do I want to space things out. So now, because मेरे पास वो एक privilege है कि I can schedule sessions with my clients whatever time that I wish or they wish. I can schedule the number of hours in a day considering the bandwidth I have. तो मेरे पास वो लग्ज़री मुझे मिल जाती है कि अगर आज मेरे पास इतना हेड स्पेस नहीं है काम करने का, तो मैं 2 सेशन तक लिमिट कर सकती हूँ, या मुझे आज ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा काम भी कर सकती हूँ. आई लाइक द फ्लेक्सिबिलिटी दैट इट ऑफर्स टू मी. One thing that I slightly dislike about the job, I won't say even dislike about the job, it's a part of the job. थोड़ा ड्रेनिंग हो जाता है, इमोशनली ड्रेनिंग हो जाता है, एंड बर्नआउट्स बहुत जल्दी आते हैं. ऐसा इमोशनली ड्रेनिंग काफ़ी बार लगता है. एंड टू स्ट्रक्चर इट, टू फिगर इट आउट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि आई ऑल्सो नीड टू कूप अप विद माई मेंटल हेल्थ एंड माई इमोशनल हेल्थ, दैट इज़ एन एड ऑन विच इज़ लिटिल ड्रेनिंग कंसिडरिंग द जॉब. Okay, great. So Anushka, my next question to you would be कि tell our audience कि suppose like कोई अभी ग्रेजुएशन में है, like anyone who is pursuing his or her graduation in psychology. तो ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? मैं इंडिया की बात करते हैं, लेट्स रिस्ट्रिक्ट दिस टू इंडियन मार्केट ओनली. ठीक है, तो लाइक लेट्स से वो मास्टर्स कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, तो इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप ये बताइए. और मार्केट में मतलब रोड मैप टाइप आप इसे बाइफरकेट करके बता सकते हैं. एंड मॉनेटरी ग्रोथ कैसा है, बिकॉज
लेट्स से अगर कोई मेरे पास आई एम एन इंजीनियर, ठीक है, मैंने Hmm. बीटेक एमटेक किया, तो अगर कोई जूनियर आता है मुझसे टू सीक माय एक्सपर्टीज और गाइडेंस, तो मैं उसे वो Right. डिवाइड करके बताऊंगा कि लाइक अगर आपने बीटेक कर ली तो क्या कहाँ कहाँ जा सकते हो, एमटेक एमबीए ब्ला ब्ला ब्ला। Right. तो Right. ऐसे ही ग्रेजुएशन करने के बाद लेट्स से आपके पास कोई करियर गाइडेंस सीख करने आ रहा है कोई जूनियर आपका, तो Hmm. उस माइंडसेट से आप ये आंसर थोड़ा सा डिटेल में हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं। Okay. First things first, कि bachelor's is not an minimum degree required to be a psychologist. ओके मास्टर्स मिनिमम करनी ही पड़ती है, बैचलर्स में इतना कॉम्पिटेंस आता ही नहीं है, एंड नीदर डज आर गवर्निंग बॉडी परमिट्स दैट. तो ओके अगर आपको बैचलर्स के बाद यू वांट टू गेट इनटू द वर्क स्ट्रीम, देन being a therapist, counseling psychologist, all the areas which comes into the proper mental health care is unlikely. ओके बट अब आगे बहुत सारी चीज़ों को वो एक्सटेंड कर सकते हैं. दे कैन परस्यू ह्यूमन रिसोर्सेज, दे कैन गो इनटू रिसर्च वर्क, दे कैन गो इनटू sales management, all these other things which are rather psychology related. I mean, I wouldn't say completely psychology related, however not mental health per se. um, so I believe that if the people do really want to pursue mental health as such, then they should do a master's degree as a whole. But अगर उन्हें बैचलर्स के बाद ही कुछ करना है, then they would have to go into fields that is I mean different than just mental health. क्योंकि एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी मिलेगी नहीं राइट आफ्टर बैचलर्स. मिलेगी भी तो काफ़ी ज़्यादा, एक तो लो पे स्केल भी होगा, एक्सप्लॉयटेटिव हो सकती है. इट वोंट सर्व अ लॉट ऑफ पर्पस टू द पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर इट. और उसके बाद आई मीन इट जस्ट डज नॉट गिव आउट द मोस्ट फ्रूटफुल रिजल्ट्स एज सच. सो अगर आपको साइकोलॉजी परस्यू करना है, सो दैट इज आई थिंक इट्स मैंडेटरी टू कीप इन माइंड कि मास्टर्स करनी ही है. ओके बट अगर आप सिर्फ साइकोलॉजी से इंटरेस्ट परस्यू कर रहे हैं बैचलर्स बैचलर्स के लिए, यू कैन गो टू एनी अदर फील्ड अपार्ट फ्रॉम मेंटल हेल्थ. ओके एंड व्हाट अबाउट द मॉनेटरी वाइज ग्रोथ इन दिस हाँ. डोमेन? ओके. लाइक आई सेड, जैसे मास्टर्स हो जाती है, अब डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से आते हो, कितनी स्किल सेट है आपके पास, आपने क्या क्या किया है थ्रू आउट योर एजुकेशन. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर साइकोलॉजी बैकग्राउंड से आप आ भी रहे हो, सो इट इज़ंट जस्ट इनफ टू डू योर डिग्री. इंटर्नशिप्स इम्पॉर्टेंट होती है, वर्कशॉप्स इम्पॉर्टेंट होती है, सर्टिफिकेशंस भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होते हैं. So all of these are considered, including your skill set. Most primarily, the recruiters do look at how skilled are you at your job. जैसे मैंने कहा था कि बहुत बड़ा gap है between what is taught in colleges and how you practically do it. The recruiters often ask कि अच्छा ठीक है, even if we had to pay you 25-30,000, justify why would we do that? Although it is like a bare minimum wage after a master's degree, 30,000 तो बनता है, किसी भी प्रोफेशन में बनता है. ट्रू बट क्योंकि ये गैप इतना बड़ा होता है ना कि लोग, थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट, उसको जस्टिफाई ही नहीं कर पाते कि क्यों पे करें हम इतना. ऑल्दो इट शुड बी डन, बट वो भी एक गैप है, हमारी साइड से भी वो एक गैप आता है. तो मॉनेटरी बेनिफिट completely depends on a person's skill set based out of whatever they've learned and how they've utilized their time. उसके बाद वो ग्रोथ होती है, अब वही डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर में जा रहे हो. सो अगर आप क्लिनिकल रिहैबिलिटेशन वर्क में जा रहे हो, दे यूजुअली प्रेफर इन हाउस काउंसलर्स. तो उनको ओके सैलरी एक मिनिमम टू एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिड सैलरी रेंज मिल जाता है, जैसे 25 to 35,000 के बीच में. एंड दे ओके ऑल्सो गिव टेक केयर ऑफ देयर लिविंग एक्सपेंसेस, फूड एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो इन हाउस ही रहते हैं. और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में है या मोर लाइक अ कॉर्पोरेट सेटिंग, दे ईदर गेट पेड मोर और दे हैव हायर वर्किंग आवर्स. ओके और मतलब उनको इतना फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होता, बट ऑफ कोर्स मॉनेटरी वैल्यू वाइज इट इज अ लिटिल डिफरेंट देन व्हाट क्लिनिकल रोल्स, रिहैबिलिटेशन रोल्स लुक लाइक. ओके थैंक यू. सो अनुष्का, लाइक मूविंग ऑन, जैसे आपने स्किल सेट्स की बात की, सो लाइक जी, आई बिलीव आपने दो तीन अपने आंसर्स में स्किल सेट्स की बात की, सो कुड यू बिल्कुल. टेल आवर ऑडियंस की लाइक वो क्या स्किल सेट्स हैं जो एक एक अच्छे थेरेपिस्ट में या एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट में होने चाहिए? ऑन अ वेरी जेनेरिक लेवल कुछ स्किल्स है जो मुझे लगता है नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं. अगेन आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम कि सब सब यही मानते हैं. दिस इज व्हाट आई बिलीव एज अ थेरेपिस्ट. वन इज कि आप एम्पैथेटिक हो, आप हम्म नॉन जजमेंटल हो, एंड यू आर ओपन टू डिफरेंसेस. बिकॉज कई बार ना हम थ्योरीज और ये सब चीज़ें में इतना ज़्यादा अटक जाते हैं दैट वी फॉरगेट दैट दिस पर्सन हैज़ यूनिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड यूनिक सेट ऑफ सॉल्यूशंस दैट दे नीड. एंड
थेरेपी और साइकोलॉजी सब चीज़ें मेंटल हेल्थ के बारे में सिखाते हुए हमें थ्योरी सिखाई जाती है, कंसेप्शलाइजेशन सिखाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप गाइड भी सिखाई जाती है कि इसके बाद ऐसे करना, ये करना, एथिकल बाउंड्री सिखाई जाती है दैट वी हैव टू स्टिक बाय। बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं विच आर रादर स्ट्रक्चर्ड इन नेचर। अब वो स्ट्रक्चर क्योंकि केओस अवॉइड करता है, स्ट्रक्चर से बहुत सारी चीज़ें हम प्रोग्रेस मैपिंग ये सब कुछ कर सकते हैं। हाउएवर कई बार ऐसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं समझ में आ पाते। सो हम्म। आई थिंक अ गुड साइकोलॉजिस्ट इज द वन हु इज ओपन टू डिफरेंसेस लाइक दैट कि यार थ्योरी टू ओके। थ्योरी फॉलो नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे क्लाइंट का नीड क्या है। सो हम्म। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग इंटरवेंशंस कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये सोल्यूशन दे दो, ये हो रहा है सोल्यूशन नहीं, ये इंटरवेंशन दे दो कि इससे आपको बेटर फील होगा। There हम्म। are times when the client does not need that intervention, but we get so stuck in the process of कि नहीं नहीं इसको ये प्रॉब्लम हो रही है तो इंटरवेंशन देना पड़ेगा, कि हम उन पे वो कभी कभी फोर्स कर जाते हैं कि नहीं ये करो तभी जाके आप बेटर फील करोगे। बुरी बात नहीं है, आप ओके। अच्छे इंटेंशन से ही आ रहे हो, बट उनकी नीड केटर नहीं हो रही है। हम्म। So I think that the fact that people are receptive and open to the differences, to the fact that every individual has different needs, is one of the most primary skills that I feel a psychologist should have. Okay. Thanks for the detailed answer, Anishka. Like moving on to our another question. So, what are the common myths or misconceptions that you have figured out or you have experienced throughout your academic and professional career that you would like to clarify or highlight through our podcast medium? बहुत सारे यार ऐसे तो मिसकंसेप्शन साइकोलॉजिस्ट के बारे में। एक सबसे बड़ा मुझे लगता है कि सबको फील होता होगा कि हम अगर आप लोगों आपकी मेंटल हेल्थ ठीक कर रहे हैं तो हमारी तो बेस्ट ही होगी। ऐसा आई डोंट थिंक होता है, बिकॉज एवरी साइकोलॉजिस्ट है जनरली ह्यूमंस ओनली ना, तो उनके पास भी वही सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती है जितना किसी भी और इंसान के पास होती है। तो Mm-hmm. दे आर नॉट परफेक्ट बीइंग्स ईदर। True. वो भी कभी कभी ऐसे चीज़ों में अटक जाते हैं जो नॉर्मली कोई भी इंसान प्रॉब्लम में फंसेगा। उनके भी थॉट्स कभी कभी बहुत इरेशनल हो जाते हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता, बट Mm-hmm. हो जाता है बिकॉज इट ह्यूमन नेचर है, सबके साथ होता है, बट दे True. ऑल्सो नीड टू सीक हेल्प। दूसरी बात ये कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ लेंगे उससे हमारी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए ज़रूरी नहीं है। यू नो वी आर ऑफन आस्क्ड कि अच्छा तुम्हें बुरा लग रहा है, ठीक है अपने नोट्स पढ़ लो जाके। It does not work like that. We can't go read our notes and feel okay, I'm happy now, everything in my life is sorted out. True. तीसरी चीज़ ये होती है कि of course a lot of freelancing psychologists are doing their own private practice catering to their clients does not mean that they are exploiting or making too much money. ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज क्या होता है ना, वो एक बेसिक एस्टिमेट लगाते हैं लीनियर सिचुएशन में कि 1,000 रुपये पर सेशन आप ले रहे हो, Mm-hmm. दिन का 5 सेशन करोगी वो अर्न 5,000 रुपीज़, बट डज नॉट वर्क लाइक दैट ऑनेस्टली। पाँच True. सेशन लेना भी बहुत मेंटली टैक्सिंग होता है और उस 5 सेशन के लिए 10 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है। सही बात बिकॉज यू हैव टू वर्क फॉर एवरी इंडिविजुअल राइट। अगर 1 घंटा मैं एक इंसान को दे रही हूँ तो मुझे वो 1 घंटे में क्या करना है वो प्लान करना पड़ेगा। उसमें भी कभी कभी 2-3 घंटा लग जाता है। सो इट इज़ लुक्ड अपॉन इज अ वेरी लीनियर वे कि अच्छा 5 घंटे 5,000 हो, यू आर अर्निंग 5,000 अ डे, तो यू आर इजीली मेकिंग व्हाट्स 35,000 अ वीक। डजंट गो लाइक दैट। तो ये आई थिंक सेकंड बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है अबाउट साइकोलॉजिस्ट। ओके, ग्रेट। सो लाइक जितना मुझे अभी समझ में आया, लाइक बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ बायोलॉजी बैकग्राउंड, सो जी। लाइक जैसे आजकल फिटनेस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है? तो हम्म। जैसे वेट गेन, हमारा वेट गेन जर्नी या वेट लूज जर्नी हमारा, तो वो हाँ जी। हर इंडिविजुअल की सेम नहीं हो सकती, ठीक है? हमारी बिल्कुल। हर इंडिविजुअल की बॉडी अलग है। एक दवाई भी जी। हो सकता है आपके ऊपर अलग तरीके से काम करे, मेरी एक हाँ। सेम मेडिसिन मेरे ऊपर अलग तरीके से काम करे। हो सकता है एब्सोल्युटली। आपको उसके साइड इफेक्ट्स ना दिखें, हो सकता है मेरे को दिख जाएँ। तो सही बात है। जितना मैं समझ रहा हूँ कि आपके आपके आंसर से कि हर पेशेंट सेम नहीं होता। तो जैसे अनिष्का अगर हम्म। लेट्स से लव इन को कैटर कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम माइंडसेट से करेंगे या सेम सॉर्ट ऑफ आंसर या सेम सॉर्ट ऑफ थेरेपी हाँ में हाँ, बताएँगे। 100%, तो 100%, डेफिनेटली। ये आई बिलीव काफ़ी सारे लोगों का मिथ रहता ही होगा। तो आई बिलीव कि आपके आंसर से आज वो मिथ थोड़ा ब्रेक डाउन होगा। So moving on to, yeah. I just had something to add to that.
क्या होता है ना, हमें लगता है कि सबकी लाइफ ट्रैजेक्टरी सिमिलर जा रही है। जैसे अभी एक इंसान को डिप्रेशन है, दूसरे को भी डिप्रेशन है। इसको जो हम्म। ट्रीटमेंट फिगर आउट हो रहा है या इसका जो भी केयर प्लान है वो उसके दूसरे इंसान का भी फॉलो अप होगा। बट हम्म। इतने सारे फैक्टर एट प्ले होते हैं ना कि इस इंसान का रेजिलियंस कितना है, दूसरे का कैसा है, उसको सपोर्ट कितना मिल रहा है, इसको सपोर्ट कितना मिल रहा है, ट्रू। इनका एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, वोकेशन, रेवोकेशन, ऑल दीज बैकग्राउंड्स डू प्ले अ वेरी ह्यूज रोल बिटवीन हाउ दीज टू आर डिफरेंट। तो हम्म। सामने सामने वेरी सरफेस लेवल दोनों को डिप्रेशन है, हम्म। पर दोनों को डिप्रेशन परसिस्ट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें फिगर आउट करना इज अ ह्यूज टास्क। एंड ऑल्सो उसके बाद वो प्लान डिसाइड होता है कि हाउ टू हेल्प ए पर्सन, हाउ टू हेल्प बी पर्सन। ओके। सो एक क्वेश्चन अभी जो स्ट्राइक किया माइंड में, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम गोना आस्क यू कि हम्म। यार जो आपके सेशंस होते हैं, तो हम्म। बीइंग अ थेरेपिस्ट, क्या आप मतलब जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप थोड़ा सा समझाते हो चीज़ों को, या फिर यू नो होता कैसे, लाइक कुड यू एक्सप्लेन अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बीइंग, आप अपनी लाइफ का ही बता सकते हो, नीड नॉट टू गो हम्म। इनटू द निटिग्रिटीज ऑफ द पेशेंट, या हम कुछ वो नहीं, हाँ जेनरिक हाँ लेवल पे हाँ। आप बता सकते हो। हर थेरेपिस्ट का वर्क स्टाइल डिफरेंट होता है। आई somehow come from a point of view where I'm open to the ideas whatever is working for a person. ओके। तो अगर उन्हें लगता है कि हाँ स्पिरिचुअल होना, आई थिंक आई हैव नो प्रॉब्लम विद समबडी बीइंग स्पिरिचुअल और रिलीजियस, कोई इशू नहीं है। ओके। अनलेस इट स्टार्ट्स टू सॉर्ट ऑफ बॉदर देयर जनरल लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप्स बॉदर करने लग जाए कि अरे मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, हम्म। वो चीज़ एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बट इफ़ दे हैव अ सर्टेन बिलीफ सिस्टम, आई डोंट क्वेश्चन, आई डोंट डिस्टर्ब इट। ओके। क्योंकि अगर वहाँ से उन्हें होप ड्रॉ होके वो अपनी लाइफ आगे बढ़ा पा रहे हैं एट अ गुड satisfactory level, then I am nobody to question that. So I am generally open to whatever they suggest would be helpful for their betterment. If they ओके। say कि religion में जाना है मुझे, वो मुझे better feel करा रहा है, I say go for it. I ओके। think it isn't a bad idea. As long as you know how to strike a balance there. पूरा दिन उसमें चले जाओगे और उसके बाद आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम, फैमिली, ये सब है, वो नहीं होगा तो एंड ऑफ द डे दैट प्रॉब्लम इज गोइंग टू कम राइट बैक टू यू. So I approach it in a way, whatever works for you, we do that. When it comes to clients, it is more or less कि एक ब्रीफ में जो मेरा एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, इस टू पहले तो आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड कि उनका जो लास्ट टाइम हम मिले थे से अब तक में क्या चेंज रहा है, हम्म। इंक्लूडिंग द गुड, द बैड, एवरीथिंग, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ, क्या बॉदर किया, क्या नहीं बॉदर किया, कहाँ प्रोग्रेस फील हुई। तो हम्म। छोटी छोटी चीज़ हम क्लाइंट को एक्नॉलेज करवाते हैं कि अच्छा ठीक है, आई हैव डन दिस गुड इवन इफ थिंग्स डिड नॉट गो वेल फॉर मी इन माई लाइफ। तो उससे थोड़ा सा होप भी इंस्टिल होती है कि नहीं यार ठीक है, मेरा पिछला हफ्ते से खराब ये हफ्ता था लेकिन आई कोप्ड विद इट बेटर. हम्म। So that is usually the priority things that I follow up in the session. Then we go on, we have certain goals to follow up on, तो हम वो goals के बारे में बात करते हैं. उसके बेसिस पर दोनों इंटरवेंशंस फिगर आउट करते हैं, तरीके ढूंढते हैं कि इसको कैसे इनके लिए ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं. ठीक नहीं हो सकता, बेटर नहीं हो सकता, तो एक्सेप्ट कैसे करना है. और आई थिंक 40-45 मिनट्स इसमें ही ऐसे चले जाते हैं. ओके। गॉट इट। सो लाइक आप मतलब अपने पेशेंट्स को थोड़ा लाइक ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद वेग भी हो सकता है, बिकॉज आई एम नॉट हाँ हाँ, नो नॉट वरीज, नो मच अवेयर वरीज. अबाउट दिस डोमेन। हाँ. सो आप लोग, आई डोंट थिंक ये मेडिसिन वगैरह कुछ प्रिस्क्राइब करते नहीं नहीं होगे नहीं, ऑफ ना, कोर्स वो नॉट सब नहीं ना, मेडिसिन अलाउड नहीं. नहीं होगा ना वो तो। नहीं नहीं नहीं, साइकाइट्रिस्ट मेडिसिन देते हैं बिकॉज दे कम फ्रॉम द एजुकेशनल बैकग्राउंड विच इज सपोज्ड टू गिव मेडिकेशन एंड ऑल दैट. वी आर नॉट. हम इवन इफ वी कम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, वी डोंट कम फ्रॉम द मेडिसिन मेडिकल बैकग्राउंड. ओके। तो हमें मेडिसिन देना बिल्कुल भी अलाउड नहीं अलाउड है नहीं एंड है। वी वुड नेवर. या सो साइकेट्रिस्ट के लिए तो आई बिलीव वो टोटल पूरा एमबीबीएस एमडी का हाँ कोर्स हाँ, पूरा पूरा वो पूरा पढ़ाई कन्वेंशनल मेडिकल स्टडीज है. मेडिकल ना, हाँ. वही इस पूरी हाँ. रोड मैप रहता है। ओके। यस. गॉट इट, गॉट इट। सो अनुष्का, मूविंग ऑन, जो सबसे मेन हमारा एजेंडा कह सकते हो आप हमारे पॉडकास्ट का, या फिर सबसे हॉट टॉपिक आजकल चल रहा हम्म. है, हम्म. मेंटल हेल्थ इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि हम्म. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज, वैसे तो ये मतलब एक टैबू बन गया है कि कॉर्पोरेट, मतलब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहां पर मेंटल स्ट्रेस मेरे ख्याल से ज्यादा ही रहता होगा, लेकिन चलो हम इस डिबेट में नहीं जाते कि हाँ हाँ, मेंटल ऑफ स्ट्रेस कोर्स. प्राइवेट में ज्यादा है कि बिजनेस में कि कॉर्पोरेट में। जी, लेट से हम ऑफ कोर्स. कॉर्पोरेट में ही बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ. गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, दे आर नॉट
अलाउड टू कम ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म या फिर बात करें हाँ, बोलकर। हाँ, हाँ, तो हाँ, ऑफ उनकी कोर्स। उनके जो दुख दर्द है ना, वो ज्यादा कॉमन पब्लिक में आ नहीं पाते। हुँ, ठीक है, हुँ, लेकिन हाँ, हुँ। कॉर्पोरेट एक ऐसी चीज है कि जहां पर हमें फ्रीडम टू स्पीच बहुत ज्यादा मिल जाती है। लोग जैसे एब्सोल्युटली। इंस्टाग्राम पर या फिर लिंक्डइन पर यू कैन सी एन नंबर ऑफ पोस्ट कि लोग पीपल, अपने हाँ, हाँ, सही बात है। बॉसेस को मतलब अपने कॉर्पोरेट कल्चर में रेंट कर रहे हैं, क्रिप कर रहे हैं अपनी कंपनी के बारे में, अपने बॉसेस के बारे में। ठीक है, तो हुँ, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि यार कॉर्पोरेट की, आई बिलीव आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी रहे होंगे, हुँ, लाइक हुँ, हुँ। जो आपसे बिल्कुल, थेरेपी के लिए आते होंगे। तो हाँ। व्हाट काइंड ऑफ कॉमन प्रॉब्लम, लाइक सॉल्यूशन की तो आप बात आपने करी ली हमारे प्रीवियस एस्पेक्ट में, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं बेस्ड ऑन योर कॉर्पोरेट को लेकर ना। एक्सपीरियंसेस? हाँ, कि कॉर्पोरेट में कि क्या ये अभी भी टैबू है, लोग ध्यान कम देते हैं इस चीज पर। ठीक है, और ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं आपके पास? So when it comes to corporate, I think one of the two things that I've seen so far बहुत commonly, first is loneliness. क्योंकि आजकल जो शिफ्ट आ रहा है वर्क फ्रॉम होम की तरफ, पर एक इंसान अपने कमरे में बैठ के अपने घर में अकेले स्क्रीन के सामने 12-13 घंटे बैठे, और उसके पास उनके पास इतना स्पेस नहीं होता है कि वो अपने आप को सोशलाइज कर पाएँ, क्योंकि एक तो वो स्क्रीन के सामने बैठे हैं, उनका लाइफस्टाइल भी वैसे ऑल्टर हो रहा है, अकेले बैठे हैं, देयर इज नोबडी टू इंटरेक्ट विद। ऑफिस में एटलीस्ट ये चीज़ें होती है दैट यू हैव समबडी राइट नेक्स्ट यू टू थोड़ा बहुत हैव अ कॉन्वर्जेशन एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक लोनलीनेस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रबलिंग फैक्ट्स व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट। दूसरी तो फिर वो होती है ऑफिस पॉलिटिक्स, हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू हैव मेंटेन रिलेशनशिप्स, हाउ टू मेंटेन कॉन्फिडेंस, हाउ टू show up as a professional, more or less etiquettes, workspace rules, regulation, ये सारी चीज़ों को कैसे फॉलो करना है, वो सेकंड मोस्ट कॉमन कंसर्न दिखता है। ओके, तो अभी जैसे हमने कंसर्न्स की बात की है ना, तो उसका सॉल्यूशन व्हाट डू यू पिच टू योर क्लाइंट? देखिए, बहुत सारे अब डिपेंड करता है कंपनी कौन से स्केल पर ऑपरेट कर रही है। मोर और लेस बड़े कंपनीज डू हैव देयर ओन सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट वेलबींग, दे आल्सो कॉल इट ईएपी प्रोग्राम्स, व्हिच इज एम्प्लॉय ओके। असिस्टेंट प्रोग्राम्स। उसमें हेल्प दी जाती है, थर्ड पार्टी के थ्रू होता है, या तो आउटसोर्स होती है वो चीज़, या फिर वो अपना ही इन हाउस कॉर्पोरेट साइकोलॉजिस्ट हायर कर लेते हैं आजकल, एंड हम्म। पीपल कैन हैव सर्टेन नंबर ऑफ सिटिंग्स विद देम। अगर ज़्यादा बड़ा कंसर्न है जो कॉर्पोरेट वाला नहीं हैंडल कर सकता, उसको रेफ़र कर दिया जाता है एक और ओके। स्पेशलिस्ट इंसान के पास, हु इज़ वर्किंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी लेवल पे ये सब चीज़ें तो हो रही है आजकल। दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स विच हैज़ सर्टेन टॉपिक्स लाइक दैट ऑफ मेंटल हेल्थ, और इंटरवेंशनल होते हैं वो। मुझे नहीं पता उसकी इफेक्टिविटी क्या है, बट एटलीस्ट दे आर मेकिंग एन एफर्ट टू थोड़ा बहुत इंटीग्रेट द आइडिया ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग in organization so far. ओके, कूल। सो अनुष्का, हमने आपके अभी रोल के बारे में समझा, डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ थेरेपिस्ट। तो यार Right. अगर मैं लाइक ये कितना डिफिकल्ट रहता होगा एक थेरेपिस्ट के लिए कि यार लेट्स से सुबह हमने लेट्स से आई एम योर पेशेंट, तो यार लविन की आपने मेंटल हेल्थ के बारे में समझा, उनकी प्रॉब्लम के बारे में समझा, फिर शाम को जी। ऑल ऑफ अ सडन आपको दूसरे पेशेंट लेट्स से वाई के बारे में समझना है। तो ये हुँ, शिफ्ट कितना डिफिकल्ट रहता है एक थेरेपिस्ट के बारे में, और हुँ, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? ठीक है, कुछ चैलेंजेस के बारे में बताइए, और आप बीइंग अ थेरेपिस्ट उन्हें कैसे ओवरकम करते हैं? ठीक है। Again, can't advocate for all therapists out there. I can just talk for myself. एक क्लाइंट टू क्लाइंट, जैसे एक इशू टाइप टू दूसरे इशू टाइप में मुझे ट्रांजिशन करने में डिफ़िकल्टी नहीं होती। ओके। आई थिंक इट जस्ट हैपेंस बिकॉज़ अब आदत हो गई है, टू बी ऑनेस्ट आई हैव बीन वर्किंग फॉर अ व्हाइल एज़ अ थेरेपिस्ट, तो अब एक हैबिट बिल्ड हो गई है। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए है कि प्रोफ़ेशनल से पर्सनल लाइफ़ में ट्रांज़िशन कैसे करना है। So basically, how to go from being a therapist to a human, to just a person whose entire personality is not about being a therapist. So वो क्या होता है ना, कभी कभी जनरल पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी रिफ्लेक्ट होने लगता है दैट ओ somebody has to remind me okay that अनुष्का stop being a therapist। आप फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर हो तो ये चीज़ें हो जाती है। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस आई हैव सीन विद माई सेल्फ सो फार, कि प्रोफेशन से पर्सनल शिफ्ट करना। और बस उसके बाद उसके साथ तो थोड़ा इमोशनल ड्रेनिंग ये सब चीज़ें आती है, इंक्लूसिव होती है। आई थिंक दीज आर द मोस्ट लाइकली चैलेंजेस। तो ओके। ओवरकम करने का अभी तक मुझे 100% सोल्यूशन तो कभी नहीं मिला है, बट आई थिंक इट विल जस्ट हैपन एज वी गिव इट टाइम।
हम्म, गॉट इट। सो अनुष्का, मूविंग ऑन टू आवर अनदर क्वेश्चन, कि यार अगर हम एक ब्रॉडर लेवल पर बात करें, ठीक है, तो Hmm. लेट्स से कि आप हमारे जो भी हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक irrespective of their you know whether they are working in a corporate sector, they are doing government job, या फिर वो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो यार एक मेंटल हेल्थ के बारे में, मतलब जो कुछ आपके सजेशंस या कुछ टिप्स या जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, टैबू कह लो कि यार नहीं ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है, ओवर कि कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी, लेकिन Hmm. क्या आप सजेशंस देना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को कि यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इमोशनल वेलबींग भी एक बहुत Hmm. इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो एज अ थेरेपिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, आपका हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एक सक्सेस मंत्र कह लो, या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने के लिए आप क्या Hmm. बताना चाहेंगे? मैं एक बार जेनेरिक मेंटल हेल्थ मतलब टिप तो ऐसा सच कुछ नहीं होती, बिकॉज लाइक आई सेड हर इंसान के इश्यूज यूनिक होते हैं। एक जेनेरिक ट्रिप लाइक मेडिटेट करो जाके माइट नॉट वर्क फॉर एवरीबडी एल्स। तो वो ओके। भी एक जनरल टिप नहीं है, कुछ के लिए काम करती है किसी के लिए नहीं करती है। But I think I'd use like a metaphor for this. Let's imagine कि आप एक अपनी लाइफ लॉन्ग एक पानी का ग्लास लेकर चल रहे हो, ठीक है, एंड एवरी टाइम यू गो थ्रू एन इनकन्वीनियंस इट इट फिल्स इन थोड़ा बहुत। और आपको वो पानी का ग्लास लेके चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा ग्लास है, इतनी कोई इशू क्या आ रहा है। बट इट्स जस्ट कि वो भरते जा रहा है, और वो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो एकदम ब्रिम पे आ जाता है और उस पर एक ड्रॉप भी डालो ना तो इंसान स्ट्रेस में आ जाता है कि ओवरफ्लो कर जाएगा। मेंटल हेल्थ फॉर एवरीबडी लुक्स लाइक दैट ओनली, कि किसी के भी लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस नहीं होती है, बस किसी के नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। तो डिपेंड करता है किसका ग्लास कब फुल हो रहा है। गोइंग टू थेरेपी इज ऑलमोस्ट लाइक एम्प्टीइंग द ग्लास आउट एंड फिगरिंग आउट कि अब इसको मैनेज कैसे करूं, क्योंकि ये तो भरता रहेगा, इसमें कभी पानी ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आते रहेंगे, क्राइसिस आती रहेगी, बट उसको टाइम टू टाइम एम्प्टी आउट करना ज़रूरी है, नहीं तो वो स्ट्रेस बना रहेगा ना कि मैं पकड़ के भी चल रही हूँ लेकिन मुझे अपनी चलने की स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं थोड़ा जल्दी चली, वो ऑलरेडी हाँ काफ़ी भरा हुआ है तो वो जल्दी ओवरफ्लो हो जाएगा। बट अगर मुझे पता है उसको मेंटेन कैसे करके रखना है, हाफ फुल हाफ एम्प्टी कैसे रखना है, तो आई कैन मेंटेन माई स्पीड एट लाइफ। ओके। थेरेपी इज ऑलमोस्ट लाइक दैट कि आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई डिसऑर्डर ही हो, कुछ खराबी ही हो इसलिए जाना है। समटाइम्स इट्स जस्ट कि ठीक है, यू हैड एक्सपीरियंसेस इन लाइफ दैट यू जस्ट वांट टू टॉक अबाउट, टू लेट आउट, टू फिगर आउट कि अच्छा मैं और क्या बेटर कर सकती हूँ अपने बारे में। और टू बी ऑनेस्ट आई डोंट इवन थिंक कि हर चीज़ बेटर करनी ही पड़ती है। इंसान है, इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है सुपर ह्यूमन बनना। बट आई थिंक जस्ट टू एक्सेप्ट कि मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ इज ऑल्सो जस्ट एज इम्पॉर्टेंट। सो आई थिंक थेरेपी हेल्प्स विद दैट। Okay, great. So, Anishka, that was it from my side. It Okay. was an honor to have you on our podcast. And Yeah. जो भी आपने टिप्स शेयर किए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो आई बिलीव जो भी हमारे व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देखेंगे पूरा, तो दे विल लर्न अ लॉट उन। Thanks for having me. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Okay, thank you.